میری بڑی بہن کی شادی ہوئی تو اس کے سسرال والوں نے اس پر پابندیاں لگا دی۔ پہلے دن ہی کہہ دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ دوسرے کمرے میں جا کر رہو گی۔ تمہیں اپنے شوہر سے بات کرنے یا اس کے کمرے میں جانے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہوگی۔ شادی کے چند سال بعد ایک دن جب آپی اپنے شوہر کے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر اس کے اوسان ہی خطا ہو گئے، کیونکہ ان کے شوہر تو میری بہن ہنا مجھ سے 8 سال بڑی تھی۔ وہ ابو کی پہلی بیوی سے تھی۔ ابو کی پہلی بیوی کو ان سے بڑی محبت تھی۔ جب ابو کی پہلی بیوی شدید بیماری کے باعث وفات پا گئی تو والد صاحب نے ننھی منھی ہنا کی وجہ سے دوسری شادی نہ کی۔ ماں کی وفات کے وقت یہ بد نصیب بچی 2 برس کی اور ابھی پالنے میں سوتی تھی۔ بیٹی کے پالنے کو خود ابو اپنے ہاتھ سے جھولا جھلاتے اور ہنا کو سلاتے، کیونکہ ابو کی والدہ بھی وفات پا چکی تھی اور بہن اپنے گھر کی تھی۔ اس وقت انا بھی حیات تھی جو کہ بچی کو سنبھالتی تھی۔ تاہم ان کی عمر 70 برس تھی، وہ 2 برس ہی جی سکی۔ اس کے بعد ہنا کو پالنے اور سنبھالنے والا کوئی نہ رہا۔ والد صاحب دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن دوسری شادی کے بغیر کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ رشتہ داروں کے سمجھانے پر والد صاحب نے بالآخر دوسری شادی کا قصد کیا اور میری والدہ سے نکاح کیا، جو عمر میں ان سے 10 برس چھوٹی تھی۔ شادی کے وقت 16 برس کی تھی۔ 3 سال بعد میں نے جنم لیا۔ امی تو مجھے بھی سنبھالنے سے قاصر تھی، زیادہ کام کاج بھی نہ جانتی تھی۔ وہ آپی ہنا کو کیا سنبھالتی۔ بہرحال آپی تب 8 برس کی ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے بازوؤں میں اٹھا لیا اور اب وہی میرے تمام کام کرتی تھی۔ یوں کہنا چاہیے کہ جس بچی کی پرورش کی خاطر ابو نے دوسری شادی کی تھی، کم سنی میں وہی میری دیکھ بھال اور پرورش پر معمور ہو گئی۔ امی بس زیادہ تر بیڈ پر بیٹھی ٹی وی دیکھنے میں ہی مصروف رہتی تھی۔ انہیں گھر کے کاموں، میری اور آپی کی دیکھ بھال میں کوئی دلچسپی ہی نہ تھی۔ آپی کو تو وہ بالکل ہی نظر انداز کرتی تھی۔ آپی نے جب مجھے بہت پیار دیا تو میری ماں کو بھی وہ پیاری لگنے لگی۔ وہ ستیلی بیٹی کو جان سے بڑھ کر چاہنے لگی اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی، اور میں دن رات آپی کے پاس رہتی۔ وہی مجھے نہلاتی، دھلاتی، کپڑے پہناتی اور اپنے پاس ہی سلاتی، جس سے امی کو بہت آرام ملتا تھا۔ میرے بعد 2 بھائی اور ہو گئے۔ امی کو ان کی بھی دیکھ بھال سے کوئی دلچسپی ہی نہ تھی۔ ان کی بھی دیکھ بھال آپ ہی نہیں کی۔ وہ امی ابو کی آنکھ کا اب تارا بن گئی تھی۔ اب وہ بڑی ہو گئی تھی، ایف اے کر لیا۔ تب ان کے لیے ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ آپ ہی بہت خوبصورت تھی، جو انہیں دیکھتا ان کی تعریف کیے بنا نہ رہتا۔ اوپر سے اتنی سگھڑ تھی کہ سارے گھر کو اور ہم بچوں کو بھی سنبھالا ہوا تھا۔ لڑکا میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھا، لیکن اس کے بیمار دادا اپنے پوتے سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا چہرہ دیکھنے پر بازید تھے۔ تبھی ان لوگوں نے بیٹے کی جلد شادی کرنا تھی۔ آپ ہی اپنی خوبصورتی اور اتوار کی وجہ سے لڑکے والوں کو پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی۔ میرے والدین نے سوچا کہ لڑکا ڈاکٹر بن جائے گا اور ہماری بیٹی کا مستقبل روشن ہوگا۔ بہت خوشحال گھرانہ تھا۔ انہوں نے فوراً ہی ہاں کر دی۔ یوں میری پیاری بہن دھوم دھام سے چٹپٹ بیاہ کے اپنے گھر کی ہو گئی۔ آپ ہی تو ہمارے گھر کا چاند تھی اور انہی سے اس گھر میں اجالا اور رونق تھی۔ محبت کی کوسوں قضا بکھری رہتی تھی۔ وہ کیا گئی، در و دیوار کنگ اور گھر سونا سونا ہو گیا۔ ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ ہم بہن بھائی نہیں، امی ابو بھی ان کو یاد کر کے چھپ چھپ کے رویا کرتے تھے۔ مجھے تو ان کا دلہن بن کر چلے جانا ایک خواب سا لگتا تھا۔ ہر لڑکی کی اپنی ایک الگ قسمت ہوتی ہے۔ کہنے کو تو آپ ہی بہت ہی امیر گھر میں بیائی گئی تھی اور ان کے شوہر مستقبل کے مسیحا تھے، مگر وہاں ان کے ساتھ عجیب و غریب مسئلہ درپیش ہوا۔ آپ ہی کی ساس نے پہلے دن ہی حکم صادر کر دیا کہ تمہیں اپنے دلہا کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں، دلہا اور دلہن کا کمرہ علیحدہ ہوگا۔ یعنی کہ آپ ہی اپنے دلہا کے کمرے میں نہیں جا سکتی تھی، اور انہیں یہ کہہ کر اپنے جیون ساتھی کے کمرے میں جانے ہی نہ دیا گیا کہ میڈیکل کی پڑھائی ہے، جب تک شیراز تعلیم مکمل نہیں کر لیتا تم لوگوں کے کمرے علیحدہ علیحدہ ہی ہوں گے۔ اگر یہ دلہن کے چوچلوں میں لگا رہا تو اس کا ذہن بھٹک جائے گا، وہ میڈیکل کی تعلیم مکمل نہ کر سکے گا۔ اس طرح ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنے شریک زندگی سے دور رکھی جاتی، ان سے گھل مل کر باتیں نہ کر سکتی تھی۔ وہاں کوئی نہ تھا جس سے وہ بات چیت کر سکیں۔ وہ اداس رہنے لگی تھی۔
वो चाहती थी कि वो अपने जीवन साथी से बातें करे, वो उसके नाज नखरे उठाए और दोनों सैर तफरी को साथ जाए, क्योंकि जो नई दमेरी दुल्हन के ख्वाब होते हैं, आप ही को अपने शोहर को खाना तक देने की इजाज़त न थी। शहराज भाई को खाना वगैरह देने भी उनकी वालदा या बहन जाती थी। उनके सारे काम उनकी माँ ही किया करती थी। आप ही तो बस दूर तमाशाई बनी सारा खेल देखती रहती थी। उल्टा सास उनसे सारे घर के काम लेती और सलाह बातें सुनवाती थी। दिल जोई तो दूर की बात थी। इस सलूक पर मेरी बहन को बस एक चुप सी लग गई थी। रफ्ता रफ्ता उसकी सेहत खराब होना शुरू हो गई। शहराज भाई को भी अपनी दुल्हन की हालत पर दुख होता था, मगर जैसे वो मजबूर थे, क्योंकि उनकी पढ़ाई का तमाम खर्चा उनके बड़े भाई उठा रहे थे। और एक बार जब आप ही मैके आई तो शहनाज भाई अपने कॉलेज से सीधा हमारे घर ही आ गए। जब उन्होंने चाय वगैरह पी तो वो ड्राइंग रूम में बैठे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अरीबा, हिना को बुलाकर लाओ। जब मैंने आप ही को पैगाम दिया, वो तो जैसे खिल उठी। पहली बार उन्हें अपने शोहर से बातचीत का मौका मिला था। दोनों में बातें ही हो रही थी तो शहनाज भाई आप ही से माफी मांग रहे थे कि मुझे माफ कर दो, मैं बस मजबूर हूँ, वरना मेरा जहन और दिमाग में हर वक्त बस तुम ही होती हो। बस कुछ ही साल की ये जुदाई है, फिर हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। आप ही उनसे गिले शिकवे कर रही थी, रो रही थी। शहनाज भाई ने उनके आंसू साफ किए और कहा कि हम चाहे अलग सही, मगर मैंने शादी वाले दिन जब तुम्हें पहली बार देखा था, तब से मैं तुम्हारी सूरत मेरे दिल में बस गई है। तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे दूर रहता हूँ और मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। मैं खुद से ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ। अब तुम जानती हो कि मेरी पढ़ाई का खर्चा भाईजान उठा रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तालीम मुकम्मल करने के बाद मैं अपना एक अच्छा मुस्तकबिल बनाऊं और तुम्हें सारी खुशियाँ दूं। जो कुछ तुम मेरे घर में बर्दाश्त कर रही हो, वो सब मैं देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे खबर नहीं, एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगा और फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मेरी बीवी को कुछ भी कह सके। वो आप ही को हौसला देते रहे। लोगा अब ये होने को आप ही जब मैके आती तो शहनाज भाई को जैसे मौका मिल जाता, तब वो कॉलेज से सीधे हमारे घर ही आ जाते और घर वालों से छुप कर अपनी दुल्हन के साथ रह लेते। इन 2-4 दिनों में वो अपनी दुल्हन से मोहब्बत और उनकी दिलजोई कर लेते थे। उसके बाद फिर वही ससुराल का घर और वही सास का दबाव, जिसमें चलाने को हमारी आप ही का ईंधन बनाया गया। बस इसी खींचातानी में हमारी आप ही की जिंदगी के दिन गुजरने लगे। और जब आप ही उम्मीद से हुई तो सास ने खूब लान तान की कि आखिर ये बच्चा किसका है, किसके साथ तुमने ये गुल खिलाया। उन्होंने बताया कि ये आपका ही पोता है। वो बरस पड़ी कि हमारी इतनी नसीहतों के बावजूद तुम लोगों ने ये गुल क्यों खिलाया है। 9 माह आप ही ने यही लान तान सुनते गुजार दिए। उनके बच्चे को किसी को कोई खुशी न थी सिवाय शहनाज भाई के, जो चोरी छुपे हमारे ही घर आकर बीवी से अपनी खुशी का इजहार करते थे। पहले पहल तो शहनाज भाई चोरी छुपे अपनी दुल्हन से मिलते, फिर शायद हिम्मत हार दी। घर से बाहर कॉलेज में पढ़ाई और घर के अंदर उन पर आयत पाबंदियों ने उन्हें अपनी बीवी से मुस्तकिल दूर और बेगाना कर दिया। जब शहनाज भाई मेडिकल के दूसरे साल में थे, तब उनकी शादी आप ही से हुई थी। इन 6 सालों में उनके 3 बच्चे हो गए। हर दफा की दफा सास ने आप ही का जीना बहाल कर दिया था और आम दिनों से भी ज्यादा काम करवाती। अगर आप ही कभी बेबस होकर सास को थोड़ा सा जवाब दे भी देती तो वो आग बगोला होकर कहती कि उम्मीद से हो तो हम क्या करें। पता भी है कि शोहर अभी जेर तालीम है। शहनाज भाई पास आउट हो गए, लेकिन मजीद 4 साल की आला तालीम के लिए उनको बैरून मुल्क भेजने की बातें घर में होने लगी। डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल होने के बाद उनकी तानियाती लाहौर के एक अस्पताल में हो गई। वहाँ एक खूबसूरत नर्स जिसका नाम मारिया था उनसे घुल मिल गई। फिर इस लड़की की वजह से मेरी खुशियों की मुंतजिर आप ही की उम्मीदों पर ओस ही पड़ गई। शहनाज भाई अपनी बीवी की कुर्बानियों को भूल भाल कर रफ्ता रफ्ता मारिया से करीब तर होते गए। वो दोनों घंटों बाहर घूमते, रेस्टोरेंट में साथ खाना खाते, यहाँ तक कि उनकी बात खुफिया शादी तक जा पहुंची। इस मामले की किसी को कानो कान खबर तक ना हुई। यहाँ तक कि शहनाज भाई को उनके बड़े भाई ने मजीद आला तालीम के लिए अमेरिका भिजवा दिया और इस हॉस्पिटल में कुछ नर्सों की जरूरत का कोटा निकला। उन्होंने मारिया को मतला किया और फॉर्म वगैरह भी भिजवा दिए। हर तरह की मदद करके उसे भी अपने पास ही बुलवा लिया। 1 साल के बाद वो घर वालों से मिलने आए, लेकिन आप ही से लिए दिए ही रहे।
اور میری आपी की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। चंद दिन बाद ही उनकी वापसी थी। वापसी पर जब वो जा रहे थे तो आपी और बच्चों को एयरपोर्ट आने से मना कर दिया कि बच्चे उदास हो जाएंगे। हत्ता कि घर वालों को भी आने से मना किया। घर पर खुदा हाफिज कहकर एयरपोर्ट चले गए। अब्बू को खबर हुई तो वो अपने घर से उनको सियाफ करने एयरपोर्ट पहुंच गए। वहां पहुंचकर उनको ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि वो अकेले नहीं थे, बल्कि एक लड़की की हमरा जा रहे थे, जो कि उनकी बीवी के तौर पर उनके साथ जा रही थी। वालिद ने दूर से ही देखा और बगैर बात किए मुर्दा दिली से घर वापस आ गए। घर आकर अम्मी को बताया तो वो भी रंजीदा हो गई। उन्होंने आबी की सास को फोन करके तमाम सूरत हाल के बारे में बताया तो पता चला कि इस राज से सिर्फ शराज भाई की वालदा ही आगाह थी कि शराज ने मारिया से पाकिस्तान में ही शादी कर ली थी। अम्मी अबू ने बाहम मशवरा किया कि हिना बेटी को बताना चाहिए या नहीं। दोनों ने इसी बात पर इत्तेफाक किया कि बेटी को बता देना चाहिए, उसे अंधेरे में रखना दुरुस्त नहीं। आप ही को इस बारे में पता चला तो उनके जैसे पैरों से जमीन निकल गई। वो सुन होकर बेहोश होकर गिर पड़ी। जिस इंसान के लिए उन्होंने इतने साल इंतजार किया, जब उससे कुर्ब का वक्त आया तो वो किसी और का ही हो चुका था। उनकी तो जैसे दुनिया ही लुट गई थी। इतने सालों में वो मजबूरी के बायस शोहर की मोहब्बत की हसरत दिल में ही लिए बैठी थी, और जब वक्त आया तो शोहर भी किस कदर बेवफा निकला। वो जो कहता था कि मेरी खातिर ये सब बर्दाश्त कर लो, देखना एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगा, और फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मेरी बीवी को कुछ कहे। वो इंसान अब अचानक से किस कदर बदल गया था, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। वालदैन ने आप ही हिना से कहा कि अब ससुराल का घर छोड़ दो, अब उस अजियत भरे जाल से निकलो और मैके लौट आओ। हमसे भी तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, जो अब तक ऐसे लोगों के पास तुम्हें रहने दिया। लेकिन आप ही ने इनकार कर दिया कि मेरे 3 बच्चे हैं, उनको उधर ही पलने दे, उन्हें लेकर मैं नहीं आ सकती, मैं वहीं रहूंगी। मुझसे ना सही, शहराज अपने बच्चों से तो मोहब्बत करेंगे ही, क्योंकि ये उनकी सगी औलाद हैं। और यूं ही साल पे साल गुजरते गए, मगर शहराज भाई अमेरिका में अपनी दूसरी बीवी के साथ यूं मगन हो गए कि कभी आप ही का ख्याल ना आया और ना ही बच्चों से मिलने आए। जब आप ही के दोनों बेटों ने मैट्रिक पास कर लिया तो शहराज भाई ने आला तालीम के बहाने से उनको अपने पास बुलवा लिया। आप ही ने दिल पर पत्थर रखकर दोनों लखते जिगर खुद से हजारों मील दूर बाप के पास भिजवा दिए। वो भी ऐसे गए कि फिर न लौटे। आप ही हरदम उनको याद करती और आंसू बहाती। उनको अपने बेटे को भेजना ही नहीं चाहिए था। 10 साल बाद एक रोज शहराज भाई अपनी सबसे छोटी बहन की शादी में शिरकत करने अचानक ही पाकिस्तान आ गए। उनकी दूसरी बीवी मारिया भी साथ थी। आप ही का पहली बार अपनी सोतन से सामना हुआ था। शहराज भाई के मारिया से 2 बेटे थे जो हमरा आए थे, लेकिन मेरे भांजे साथ न थे। जब उनसे पूछा गया कि रेहान और फैजान क्यों नहीं आए तो कहा कि उनके इम्तिहान थे, इसलिए वो नहीं आ सके। आप ही जिनकी आंखें अपने जिगर के टुकड़ों की दीद को तरस रही थी, सावन भादों की मानद बरस पड़ी। पहली बार सोतन का सामना हुआ तो आप ही का चेहरा नक सक से दुरुस्त होने के बावजूद ऐसा बुझा हुआ था जैसे जलते हुए उपलों के ऊपर राख हो। वो बड़े हौसले से शोहर की बेगम से मिली, मगर वो मोहतरमा तो ऐसी कि किसी को खातिर में ही न लाती थी। और मेरी आपी ने बरसों बाद शोहर का मुंह देखा तो वो भी बेगाना सा ही लगा। आपी शोहर के लिए किचन में खाना बनाती और आंसू भी पूछती जाती। 2 घड़ी तन्हाई में तो क्या, सबके सामने भी उनकी आपी के साथ कोई भी बात करने की हिम्मत ही ना हुई। मारिया ने भी शोहर और सोतन पर ऐसी कड़ी नजर रखी हुई थी कि क्या मजाल हो जो लम्हा भर के लिए वो आकर आपी के पास ही बैठ जाते और पूछ लेते कि तुम कैसी हो। वो तो अपनी बेटी से भी बस अजनबियों की तरह ही मिले थे। आपी की बेटी ने सोचा था कि अब बाप आएगा तो उसको प्यार से गले लगाएगा, लेकिन बाप ने तो सर पर हाथ भी ना रखा, बस अजनबियों की तरह जबान से हाल चाल पूछा। आपी की बेटी दानिया काफी समझदार हो चुकी थी। वो अक्सर हमारे घर रहने आ जाती थी। अपनी पप्पो की शादी में जो सुतेली माँ को देखा तो उससे ही नहीं, बाप से भी, उससे भी ज्यादा उसको नफरत महसूस हुई। जिस शख्स का बरसों इंतजार किया वो बेटी से मिला भी तो ऊपरे दिल से। तानिया बहुत दुखी हो गई। माँ को रंजीदगी को महसूस करके उसने अपना दुख किसी पर जाहिर न होने दिया। उसने माँ को तन्हाइयों की आग में बरसों सुलगते देखा था, और मारिया को भी देख लिया था कि इस औरत की चालाकी और तरारी और तेजी उसके अंग अंग से फूट रही थी। बारात वाले दिन मारिया ने खूब सारे जेवरात पहने और वो हर एक की नजर में थी। जब रात को वो अपने कमरे में
सोने को जाने लगी तो आप ही के पास आई और कहने लगी, आप ही इस घर की मुहाफिज हैं, कि मेरे जेवर रख ले, सुबह मैं आपसे ले लूंगी। आप ही ने जेवरात लेकर अपनी सेफ में रख दिए और चाबियां अपने सिरहाने रखकर सो गई। वो शादी के कामों से थकी हुई थी, जाने कब गहरी नींद में चली गई। जब शराज भाई वापसी की तैयारी करने लगे तो मारिया ने आप ही से अपने जेवरात तलब किए। वो भागी हुई गई, सेफ खोला तो जेवरात निदारत। वो सकते में रह गई। कभी इस घर में एक पाई का हेर फेर न हुआ था। उनकी तो समझ में नहीं आ रहा था। अब मारिया ने खूब शोर मचाया, मेरे जेवर लाइए, वो तो तुम्हारे पास मेरी अमानत है, आखिर कहाँ छुपा दिए तुमने। आप ही बेचारी बुखलाकर बार बार सेफ खोलती, फिर सेफ का पट बंद कर देती। मैं भी शादी की वजह से उनके घर में ही थी। उनकी हालत देखकर मैं और तानिया भी बहुत परेशान थे। आखिर अब्बू और अम्मी को मैंने फोन किया और वो आ गए और अम्मी अपना और मेरा जेवर सारा ले आई। वो मारिया के आगे धर दिया। मारिया बोली, पुराने डिजाइन, क्या ये भी पहनने के लायक है जो मैं पहनूंगी? मुझे तो अपने वाला ही चाहिए। आखिर कहाँ गए जेवर? क्यों नहीं देती हो तुम मेरे जेवर? दांत नकोसने लगी और आप ही को बुरा भला कहने लगी। आप ही रोने लगी। तभी शहनाज भाई बोले कि मैं और ले देता हूँ तुम्हें मारिया, बस कर दो, अब चलो मेरे साथ। ज्वेलरी शॉप पर जो पसंद आए ले लो, मगर इस झगड़े को अब खत्म हो जाना चाहिए। मुझे आज भी अपनी आप ही का रोना और खजालों से धीरे धीरे मरते जाना कभी नहीं भूलता। कल आखिर शहनाज भाई और मारिया अपने बच्चों को लेकर चले गए, मगर सास नंदे और देवर सभी आप ही की तरह तरह की बातें करके उन खुश करते रहे और वो रोती रही। दानिया ने माँ को गले लगाया और चुप करवाने की कोशिश की। आपी ने बेटी से कहा, देख लेना दानिया, अब मैं जीती ना बचूंगी, मैंने मरने का इंतजाम कर लिया है। उन्होंने कोई ऐसी दवा मंगवा ली थी जिसकी ज्यादा मिकदार से इंसान कोमे में जा सकता था और फिर इसी हालत में मौत वाकई हो जाती थी। ये दवा भी शहनाज भाई ने ही बातों बातों में बताई थी कि अमेरिका में एक मरीज ने उसे पीकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया था। आप ही के लेटर पैड पर नाम था। आप ही ने वो ले लिया और ड्राइवर से दवा मंगवा ली, जो आधे सर के दर्द के मरीजों के लिए इंतहाई कलील मिकदार में दी जाती थी, और वो भी उस वक्त जब डॉक्टर जरूरी समझते थे। दानिया ने दवाई की शीशी माँ की दराज में देख ली थी। उसने समझदारी से दवा को बाथरूम में खाली करके उसमें कोई बेजरूरत टॉनिक भरकर रख दिया। रात के 2 बजे जब सो गए तो आप ही ने दवा की पूरी शीशी हलक में उंडेल ली। अपनी दांत में जिंदगी का खात्मा करने को उसने ये अमल किया और मरने के इंतजार में लेट गई। मगर उस रात ना तो वो सो सकी और ना ही मर सकी। सुबह को कहीं आंख लगी। दानिया ने नाश्ता तैयार किया और जब दिन के 10 बज गए और माँ को बेदार किया कि अब उठ जाइए, चाय पी लीजिए, आज तो आपने फजर की नमाज भी नहीं पढ़ी। घबरा कर आबी ने आंखें खोली और पूछा, दानिया क्या मैं जिंदा हूँ? अम्मी जान, अल्लाह का शुक्र है आप जिंदा हैं और इंशाल्लाह जिंदा ही रहेंगी। लंबी उम्र जिएंगी मेरे लिए। मैं आपको कभी भी नहीं मरने दूंगी। आपके बाद आखिर मेरा कौन है और मेरे बिना आपका कौन है? जरा सोचिए। उन्होंने दानिया को गले से लगा लिया और खूब रोई। बोली, हाँ बेटी, तू ही तो मेरा बासरा है। मेरी बेटी ही नहीं, मेरी गम गुसार भी है। मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे बाद मेरी बेटी का कौन बनेगा। मैं अपनी बेटी को तनहा न होने दूंगी और मैं तुम्हारे साथ ही जीऊंगी। कुछ दिनों के बाद आपी के बड़े बेटे रिहान का खत आया। माँ को लिखा था कि खुद को सजा देने की जरूरत नहीं है, सबको बआवाज बुलंद बता दीजिए कि आप मुजरिम नहीं हैं। मारिया ने जो जेवर आपके पास रखवाए थे उसने खुद ही उन्हें सेफ से निकाल लिया था और वो उसके पास ही है। दरअसल उस रात आपी जब चाबी रखकर सो गई तो मारिया भी इस ताक में थी। खुदा मालूम कब वो कमरे में आई और आपी के सिरहाने से चाबियां निकाल ली और सेफ में से जेवर उठाकर ले गई। दरअसल उसने आपको और पापा को बाकी घर वालों की नजर से गिराने के लिए ऐसा किया। वो अच्छी औरत नहीं है, नीच खानदान से है, ये हकीकत हमको अच्छे से मालूम है। पापा भी अपनी इज्जत की खातिर खामोश हो गए। उनके पास पैसे की कमी नहीं। माँ, जब मैं पाकिस्तान लौटूंगा तो आपको सोने से पीला कर दूंगा। फिक्र मत करें, आपके दुखों के दिन कम रह गए हैं, बस थोड़ा सा इंतजार और कर लें। मैं मारिया से भी हिसाब लूंगा आपका, पापा से भी पूछूंगा। शहनाज भाई तो कभी ना लौटे, मगर 2 साल बाद रिहान और फैजान तालीम मुकम्मल करके लौट आए। वो दोनों शायद माँ के साथ रहने की कसम खाकर आए थे और फिर वापस अमेरिका नहीं गए। पाकिस्तान में ही अपना क्लिनिक बनाया और यहाँ ही शादियाँ की। माँ और बहन को वो सुख दिया जो किसी माँ को शायद ही उसके बेटों ने दिया होगा। और आप ही
اپنے بیٹوں کی محبت پا کر سارے دکھ درد بھول گئی۔ مجھے امید ہے کہ میرے سامعین کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل سدرا کی کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں۔